أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. You read. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل إن كانت لكم الدار لكم الدار الألف مدى بچه لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Allah reminds the children of Israel that Prophet Musa alayhi salam came to them with clear proofs. अल्लाह ताला याद दहानी करा रहा है बनी इसराइल को कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास वाज़े निशानियों के साथ आए थे, मिरेकल्स मोजज़ात के साथ आए थे, एंड डिवाइन लॉज अल्लाह ताला के कवानीन के साथ आए थे, दैट लेफ्ट नो रूम फॉर डाउट रिगार्डिंग द ट्रूथ। और इसमें अब इस इन तमाम चीज़ों के बाद किसी किस्म के शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, सच्चाई सामने थी, वाज़े थी। Yet even after witnessing these signs, they committed a grave act of zulm, injustice, by choosing to worship the golden calf during his absence. मगर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से 40 दिन के लिए कोहे तूर गए तो उन्होंने पीछे से सोने के बछड़े की इबादत शुरू कर दी. This highlights a recurring spiritual sickness, allowing worldly desires or emotional impulses to override clear intellectual and divine evidence. ये एक पैटर्न को शो कर रहा है, एक रूहानी बीमारी को शो कर रहा है कि दुनिया की ख्वाहिशात और जज्बातियत की वजह से उन्होंने वाज़े अक़ली और इलाही जो एविडेंस था, सबूत था, उसको रिजेक्ट कर दिया
और एक बुत की, एक बछड़े की पूजा शुरू कर दी। अ स्टेट नोन एज कुफ्र, डिसबिलीफ, इन ग्रेटिट्यूड, और इसी को कुफ्र कहते हैं। Verse 93, the Quran draws a striking scene here when Allah took a solemn covenant from them at Mount Tur and commanded them to hold firmly to the revelation. They responded with the claim, "We hear and we disobey." This was the ultimate expression of nifaq, hypocrisy, and arrogance. Their hearts were so saturated with the love of the calf that they were spiritually blinded to the truth. Allah warns that if their iman were truly genuine, it would never have permitted them to pursue such falsehood. अल्लाह ताला ने जब उनसे वादा लिया था कोहे तूर के ऊपर, और हुक्म दिया था कि वो वही के ऊपर यानी तौरात के ऊपर मजबूती से जमे रहें, उसको फॉलो करें, तो उन्होंने आगे से दावा किया, उन्होंने आगे से जवाब दिया ये इस गुस्ताखी के साथ, वी हियर एंड वी डिसोबे, हम सुनते हैं और हम नाफरमानी करते हैं खुल्ला। ठीक है, तो ये उनकी मुनाफकत और उनके तकब्बुर की आगे निशानी थी। तो अल्लाह ताला फिर उनको आगे वार्न कर रहा है कि अगर उन्होंने अपने तौर तरीके नहीं बदले और अगर उनका ईमान वाकई में जेन्युइन था, तो उनको इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था, इस तरह का रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए था। मगर चूंकि उनके दिलों में निफाक था, मुनाफकत थी, हिपोक्रेसी थी, लिहाजा वो बर्बादी की तरफ गए। The trap of desires. These verses teach us that Iman is not merely an intellectual acknowledgement of truth. यानी कि सिर्फ सुन लेना काफ़ी नहीं है, सिर्फ मान लेना काफ़ी नहीं है कि हाँ जी ये तौरात की आयात हैं या ये कुरान की आयात हैं और हम मानते हैं जी, ठीक है, हमें मतलब भी समझ आ गया, ये काफ़ी नहीं है। It must reside in the heart and govern our actions. ये हमारे दिल में बसना चाहिए और हमारे अमाल के साथ नज़र आना ज़रूरी है। इसीलिए सूरह बकरा के अंदर शुरू में अल्लाह ने फरमा दिया, बेशक ये किताब हदायत की किताब है मगर मुत्तकी लोगों के लिए, जो तकवा वाले हैं, जो अल्लाह से डरते हैं, जो नेक काम करते हैं। When we know the truth but choose to ignore it for the sake of temporary gratification symbolized by the calf, we place ourselves in spiritual danger. जब हम थोड़ी सी खुशी के लिए सच्चाई को इग्नोर कर देते हैं, झुटला देते हैं, तो फिर हम बहुत बड़े रूहानी ख़तरे में पड़ जाते हैं, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा नुकसान में डाल देते हैं। True listening, to say we hear and we obey, is the mark of a believer. एक ईमान वाला वो होता है जो ये कहता है और जो ये साबित करके दिखाता है कि मैंने सुन लिया और मैं ओबे भी कर रहा हूँ, समेना व अताना, मैं सुनता भी हूँ और मैं मानता भी हूँ। The children of Israel demonstrated that hearing without the intent to obey leads to a hardening of the heart. बनी इसराइल जो थे वो सुन तो रहे थे, बात को समझ भी रहे थे, मगर नीयत उनकी यह थी कि हमने बात नहीं माननी। We must constantly check our own response to Allah's guidance. हमें अपना जो रिस्पॉन्स है वो देखना पड़ेगा अल्लाह ताला की हदायत के तरफ, कि हम क्या करते हैं। डू वी एक्सेप्ट इट विद ओपन हार्ट्स, क्या हम इसको खुले दिल से कबूल करते हैं, और डू वी फाइंड एक्सक्यूजेस टू डिले और डिक्लाइन, या हम बहाने बनाते हैं कि हम इसको डिले कर दें, देर लगा दें, या इसको मुकम्मल इनकार कर दें।